Hello learners, welcome you again in our same course, namely Basics of Assessment for Learning in Module 2, and in my previous lecture we have already discussed on different types of assessments, namely formative assessment, summative assessment, diagnostic assessment and prognostic assessment. Today we will discuss again types of assessment part 2, which will give some other types of assessment and interact with you on this topic. Here in my previous lectures we have discussed in detail about assessment, and assessment are classified on different basis in different types. As I have already told you that in previous lecture we have discussed that assessments are of 4 types, namely formative, summative, diagnostic and prognostic. Today here again there are 4 type of assessment. First of all, internal assessment, जिनको कि आंतरिक आंकलन के नाम से जानते हैं. What do you know about internal assessment? This type of assessment refers to the evaluation of students' performance by their own teachers or the institution using tools and methods developed within the school or college. It is carried out continuously and systematically during the teaching learning process, usually forming a part of the overall assessment system. यहाँ पर विद्यार्थी का आकलन जो है शिक्षक के द्वारा या संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से उसकी प्रगति की जानकारी होती है. हम एक डिफिनीशन इसकी देखते हैं. इंटरनल असेसमेंट रेफर्स टू द systematic evaluation of students' learning skills, attitudes and performance conducted by the teachers within the school itself. विद्यालय के भीतर एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी के अधिगम, कौशल, एटीट्यूड और परफॉर्मेंस में कितनी बढ़ोतरी हुई, इस बात का जब आकलन करना होता है तो ऐसे आकलन को हम आंतरिक आकलन या इंटरनल असेसमेंट के नाम से जानते हैं. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट. इस प्रकार के आकलन के उद्देश्य क्या होते हैं. आपकी स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखे गए हैं. सबसे पहला देखिए है टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली. हियर इन दिस टाइप ऑफ असेसमेंट वी एज ए टीचर फाइंड progress of student continuously during the learning process. We get the progress of students. Further, to diagnose learning difficulties, internal assessment also assists us what is the problem of the learner, which topic, which point is observed by the learner to be difficult, that is also diagnosed by the internal assessment. Further, to provide timely feedback after getting the diagnosis of the problem faced by the learner, teacher provide feedback to the learner. इस प्रकार के आकलन में विद्यार्थी के द्वारा महसूस किए गए कठिनाई को शिक्षक फीडबैक के रूप में उपलब्ध कराते हैं, जिससे आगे उसकी समस्या का समाधान हो सके और लर्निंग जो है बेहतर तरीके से संभव हो सके. टू असेस ए वाइड रेंज ऑफ लर्निंग आउटकम. लर्निंग का जो रेंज होता है वाइड हो जाता है, उस बात को असेस किया जाता है. टू प्रमोट सेल्फ इवैल्यूएशन एंड रिफ्लेक्शन. हियर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट लर्नर कैन आल्सो बी एबल टू evaluate himself or herself and create the reflection in his or herself. To support formative assessment and continuous improvement. Internal assessment also support formative assessment as well as continuous improvement. To develop life skills and competencies. This internal assessment also help to the development of life skills. There are variety of life skills which are developed during internal assessment, as well as variety of competencies are also enhanced in internal assessment. Further, to contribute to the overall evaluation and certification. Internal assessment assist for overall evaluation of the child as well as to provide certification to the learner. Now,
we will discuss about tools used in internal assessment. There are variety of tools that can be used during internal assessment. Following few important tools are discussed or given on the screen. Please see one by one. प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स। शिक्षक आंतरिक आकलन के दौरान विद्यार्थियों को इंडिविजुअल में या समूह में प्रोजेक्ट देते हैं और विद्यार्थी प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करके उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे विद्यार्थियों की समझ, विद्यार्थियों के द्वारा सीखे गए कौशल की जानकारी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आती है। कई विषय ऐसे होते हैं जिसमें प्रायोगिक जो है अनिवार्य घटक के रूप में होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स भी प्रैक्टिकल की अपॉर्चुनिटी है जो है। तो प्रैक्टिकल के माध्यम से भी विद्यार्थियों की गतिविधियों को आकलित किया जाता है। फॉलोड बाय असाइनमेंट्स, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। बाय असाइनमेंट टीचर गिव एन अपॉर्चुनिटी so that learner can go through the content, prepare the content and submit the outcome learned by the learner, and marks awarded by the teacher in assignment assist him or her for the betterment. Followed by oral tests, बहुत सारे oral test का प्रोविजन है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थी के सीखे गए ज्ञान को आकलित करते हैं। पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, संगी साथी जो विद्यार्थी होते हैं उनके साथी भी उनको असेस करके उनके विषय में बताते रहते हैं। उसके उपरांत हर लर्नर अपने आप में अपना आकलन भी कर सकता है, ये भी इंटरनल असेसमेंट की श्रेणी में आता है। ऑब्जर्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंटरनल असेसमेंट। इट असिस्ट, इट हेल्प टू द टीचर टू नो बेटर एंड बेटर अबाउट द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। फॉलोड बाय क्लास पार्टिसिपेशन, एक विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में किस उत्साह के साथ कितने प्रतिशत अपनी उपस्थिति दर्ज कर पा रहा है, एकेडमिक में, को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी में अपनी कितना पार्टिसिपेशन, अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर पा रहा है, यह आंतरिक आकलन में एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल्स, बहुत तरीके की चेकलिस्ट होती हैं, रेटिंग स्केल भी होती है जो सीखे गए ज्ञान को, सीखे गए कौशल को चेक करके या रेट करके बताते हैं कि विद्यार्थी में कितनी समझ विकसित हुई है और आगे उसके विषय में क्या कुछ करना है। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टूल्स दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग इंटरनल असेसमेंट। नाउ एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट। देयर आर वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट. Few are given on the screen. First one is the rating scale for assessing oral presentations. If anyone is presenting something before the teacher or a group of students are presenting something before the teacher, then teacher can rate the presentation skill, content, quality, etc. and provide some specific score. Checklist for science lab safety procedures. एक विद्यार्थी साइंस लैब की प्रोसीजर को किस हद तक जो है फॉलो कर पा रहा है, इसके लिए चेकलिस्ट बनाई जाती है, उससे जानकारी हो जाती है। वीकली मैथमेटिक्स टेस्ट ऑन फ्रैक्शंस जो है एक उदाहरण है कि अगर फ्रैक्शन चैप्टर है या फ्रैक्शन चैप्टर में फ्रैक्शन पर ही हम एक वीकली टेस्ट पढ़ाएं, एक वीक में फ्रैक्शन अगर पढ़ाया जा रहा है, उस पूरे फ्रैक्शन के जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उस पर एक टेस्ट बना सकते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, आंतरिक आकलन का एक उदाहरण है। पीरियाडिक लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ऑन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम यू कैन टेक टेस्ट फॉर लैंग्वेज, दैट इज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। comprehension टेस्ट की, व्हाट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, दैट कैन बी असेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक पीरियड। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग टीम वर्क ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज, शिक्षण के दौरान, किसी गतिविधि के दौरान शिक्षक जो है विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं, टीम बना देते हैं, उनको एक काम अलॉट कर देते हैं। उस टीम के दौरान ये देखा जाता है कि विद्यार्थी जो है कितना जो है सीख पाया है, टीम के साथ उसका क्या तालमेल है, उसको ऑब्जर्व करके उसके विषय में आकलन कर पाता है कि
विद्यार्थी की गतिविधि क्या है, विद्यार्थी की समझ कितनी है, विद्यार्थी किस प्रकार से अपने आप को समूह में समायोजित किए हुए है, विद्यार्थी में कितनी समझ विकसित हो रही है। अगला उदाहरण है ओरल क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग क्लास डिस्कशंस। जो है कक्षाओं के संचालन के दौरान बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, तो उसमें मौखिक रूप से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विद्यार्थी कितना उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर पा रहा है, यह भी इंटरनल असेसमेंट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स, क्विजेज और कल्चरल प्रोग्राम्स, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट। कि how many times, how many number of students are attending the debates, quiz, or participating in cultural programs. These are also examples of internal assessment. Now, characteristics of internal assessment. आंतरिक आंकलन की विशेषताएं। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, एक एक विशेषता हम लोग बातचीत करते हैं, देखते हैं। पहली विशेषता है टीचर एडमिनिस्ट्रेड। इंटरनल असेसमेंट हमेशा टीचर के द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो विषय के शिक्षक होते हैं, अपने विषय से संबंधित विषय ज्ञान को देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए आंतरिक मूल्यांकन या आंतरिक आकलन का प्रयोग करते रहते हैं। डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव, जो आंतरिक आकलन होते हैं क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक स्वभाव के होते हैं, समस्या को पहचान करने वाले होते हैं। और फॉर्मेटिव इन नेचर, फॉर्मेटिव मतलब सतत चलने की प्रक्रिया रहती है, और एक असेसमेंट के बाद एक नई जानकारी मिलती है, समस्या का पता चलता है, फिर समस्या का समाधान किया जाता है। लर्निंग गैप्स एंड प्रोवाइड्स टाइमली फीडबैक, इस प्रकार से शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की पहचान कर पाते हैं और उनको समय से उन कठिनाइयों से किस प्रकार से निकल पाएं, कैसे उनकी अधिगम सही हो सके, इसके लिए भी वो फीडबैक जो है विद्यार्थियों को देते रहते हैं। ये भी अपने आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है आंतरिक आकलन की। स्टूडेंट सेंटर्ड, ये आंतरिक आकलन हमेशा विद्यार्थी को केंद्र में रख के, विद्यार्थी की सुविधा को ध्यान में रखते, विद्यार्थी के अधिगम में सुधार हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये लागू किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड विद टीचिंग, जो है जो शिक्षण चल रहा है उसके साथ इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ये है असेसमेंट इंस्ट्रक्शन गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलते रहते हैं टीचिंग असेसमेंट। जो है फ्लेक्सिबल एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, और कंटेक्स्ट किस समय कौन सा आकलन किया जा रहा है उसका ध्यान में रखते हुए कैन बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड एंड करिकुलम ऑब्जेक्टिव, विद्यार्थी की क्या जरूरत है और करिकुलम की क्या उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक आकलन किया जाता है, आने वाली कठिनाइयों की पहचान की जाती है, उनका निराकरण किया जाता है, जिससे हम उद्देश्यों को प्राप्ति कर सकें। कंडक्टेड इन ए फेमिलियर इन्वायरमेंट, जो आंतरिक आकलन होते हैं एक परिचित वातावरण में इस प्रकार की परीक्षाओं का, इस प्रकार के आकलन का प्रशासन किया जाता है, जिससे विद्यार्थी को तनाव जो है, तनाव चिंता जो है नहीं के बराबर होता है, इस पक्ष को बहुत कम से कम किया जाता है, जिससे वह सामान्य परिस्थिति में अपना उत्तर दे सके और उसको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। ये आपके सामने कुछ प्रमुख उद्देश्य थे जिनकी हमने चर्चा किया आंतरिक आकलन की। अब हम लोग बात करेंगे है कि आंतरिक आकलन के शैक्षिक प्रयोग क्या हैं, जो है शिक्षा के क्षेत्र में इनका हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, कौन कौन से पक्ष को ध्यान में रखते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। ये कंटिन्यूअस फीडबैक देते हैं। आंतरिक आकलन से एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समय समय पर लगातार जो है, जब तक वो अंतिम परीक्षा पास न कर ले या पूरे कोर्स को पूरा न कर ले, उस समय समय से उनको फीडबैक देते रहते हैं। इम्प्रूव्स टीचिंग मेथड्स, जो है आंतरिक आकलन जो है शिक्षक के शिक्षण विधियों में भी सुधार लाने में मदद करता है। शिक्षक को पता चलता रहता है कि मैं इस विधि से पढ़ाए, इसके बाद आंतरिक आकलन में इतना बच्चों ने स्कोर प्राप्त किया, अब क्या हमें अपनी विधि में परिवर्तन करना है, स्ट्रेटजी में कुछ सुधार लाने की जरूरत है, इसमें भी उसको मदद मिलती है। प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, विद्यार्थी का संपूर्ण विकास जो होता है इसको भी
प्रगति मिलती है, दिशा मिलती है, गति मिलती है आंतरिक आकलन के माध्यम से। आंतरिक आकलन विद्यार्थियों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। परीक्षा, डायग्नोसिस, रेमेडी, ट्रीटमेंट, इलाज, तो उस कठिनाई को दूर करके फिर आगे विद्यार्थी बढ़ता है, इसलिए वो हमेशा क्या करता है, मोटिवेटेड रहता है आगे को सीखने के लिए। फैसिलिटेट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट, आंतरिक आकलन में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को फैसिलिटेट करते हैं कि ये प्रक्रिया फॉर्मेटिव असेसमेंट हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहे। इनकरेजेज रिफ्लेक्टिव लर्निंग है, आंतरिक आकलन में रिफ्लेक्टिव लर्निंग को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो जो है, रेशनल थिंकिंग हो जो है। इस तरीके से विद्यार्थी जो है एक हट करके सोचता है, कार्य करता है, सीखने का प्रयास करता है। इसकी मतलब रिफ्लेक्टिव लर्निंग को हम क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, बढ़ावा करते हैं। कंट्रीब्यूट्स टू फाइनल ग्रेड्स, इस प्रकार से आंतरिक आकलन विद्यार्थी को मिलने वाले अंतिम ग्रेड में मदद प्रदान करता, सुविधा देता है, जिससे विद्यार्थी की ग्रेड में सुधार हो सके। वह तब हो सकता है जब हम लगातार इंटरनल असेसमेंट करते रहें, बच्चे की समस्या की जानकारी होती रहे और उसके माध्यम से उसको हम जो है फीडबैक देते रहें, उसमें सुधार होता रहे। इन पूरी प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी का जो फाइनल ग्रेड होगा, अंतिम प्राप्तांक जो होगा, वो क्या हो जाएगा, उसमें इंटरनल असेसमेंट की सहयोगिता रहती है, कंट्रीब्यूशन रहता है। अभी आपने देखा कि इंटरनल असेसमेंट, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल असेसमेंट जो है। इसी के ठीक विपरीत एक दूसरे प्रकार का आकलन होता है, जिसको कहते हैं बाह्य आकलन जो है। इसका अर्थ क्या हो गया, नाम से ही स्पष्ट है, एक्सटर्नल। कोई एक्सटर्नल बॉडी जो है आकलन का प्रोविजन करती है जो है। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, एक्सटर्नल असेसमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्सटर्नल बॉडीज। ओके, एक्सटर्नल बॉडीज क्या हो सकती हैं, जैसे एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, और एनी अदर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है, ये जो है परीक्षाओं का संचालन करते हैं। दैट मे बी टर्म बेसिस, स्टेज बेसिस और कोर्स बेसिस जो है। तो ऐसा आकलन जिसमें किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करने की व्यवस्था की जाती है, उसको हम कहते हैं बाह्य आकलन या एक्सटर्नल असेसमेंट। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट गिवन बाय यूनेस्को इन 2017। एक्सटर्नल असेसमेंट्स आर लार्ज स्केल असेसमेंट्स administered by bodies outside the school. This is the large scale assessment and this is administered by outside the school. विद्यालय के बाहर की व्यवस्था के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। To measure students performance against common standards, कुछ कॉमन स्टैंडर्ड की पहचान की जाती है, उसी के अनुपालन में विद्यार्थियों की उपलब्धियों को आकलन किया जाता है। इंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, जिससे रिजल्ट जो हो, परिणाम जो हो, ऑब्जेक्टिव हो, वस्तुनिष्ठ हो और उनको कंपेयर किया जा सके, एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी से आपस में तुलना की जा सकती है। ये हमारी एक्सटर्नल असेसमेंट की परिभाषा जो यूनेस्को के द्वारा 2017 में दी गई है। दैट इज एक्सटर्नल असेसमेंट्स आर लार्ज स्केल असेसमेंट्स एडमिनिस्टर्ड बाय bodies outside the school to measure students' performance against common standards, ensuring objectivity and comparability of results. Now see objectives of external assessment. बाह्य आकलन की उद्देश्य क्या है, तो मेजर लर्निंग आउटकम्स। ये जो बाह्य आकलन होते हैं वो लर्निंग आउटकम का मापन करते हैं, जो है असाइन ग्रेड्स और मार्क्स। इनके माध्यम से विद्यार्थियों क्या किया जाता है, कोई न कोई स्पेसिफिक ग्रेड ए बी सी डी ई दिया जाता है या मार्क्स दिए जाते हैं, स्कोर दिए जाते हैं, जो है अकाउंटेबिलिटी, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स, करिकुला एंड प्रोग्राम्स एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल। और इस बाह्य आकलन के माध्यम से हम शिक्षण की विधि, जिस कोर्स का विद्यार्थी, उसका करिकुला और या प्रोग्राम या उस इंस्टीट्यूशन के बारे में एक हम अकाउंटेबिलिटी का पता चलता है, कितने अकाउंटेबल हैं, ये बाह्य आकलन हमें ये बताता है, मदद करता है। सिलेक्शन एंड प्रमोशन जो है,
help in making decisions regarding students' progression to higher levels, awards, scholarships और प्लेसमेंट। विद्यार्थियों के किसी अगली कक्षा में प्रवेश के लिए, विद्यार्थियों को किसी विशेष नौकरी के लिए, विशेष प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन में भी बाह्य परीक्षाएं जो है मदद करती हैं, बाह्य आकलन मदद करता है। जैसे आपका जेई हो गया, नीट हो गया, कोई नौकरी हो गई, इस तरीके से। स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी अपने आप इसका उद्देश्य है, इस्टेब्लिश ए कॉमन बेंचमार्क फॉर कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद इन एंड अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। जो है एक कॉमन बेंचमार्क जो है इस बाह्य आकलन के माध्यम से विकसित किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस को विद इन एंड अक्रॉस इंस्टीट्यूशन जो है, किसी एक संस्था के भीतर या पूरे संस्थाओं के भीतर जो है उनको हम जो है तुलना कर सकें उनकी उपलब्धियों का। जो है ये आपके सामने बाह्य आकलन की विशेषता उद्देश्य थे। अब हम बात करेंगे बाह्य आकलन की विशेषताएं क्या होती है। विशेषताएं आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं। कंडक्टेड एट द एंड, जो है किसी कोर्स, यूनिट, टर्म, प्रोग्राम के अंत में जो है बाह्य आकलन किया जाता है, बीच में नहीं किया जाता, मतलब समेटिव की तरह बिल्कुल अंत में ही परीक्षा ली जाती है। इवैल्यूएटिव एंड जजमेंट, बाह्य आकलन से हम एक इवैल्यूएशन करते हैं और एक जजमेंट लेते हैं, निर्णय लेते हैं जो है जिसकी प्रगति के आधार पर विद्यार्थियों को आगे की क्लास में प्रमोशन दिया जाना है, या किसी एडमिशन दिया जाना है, या पर कहीं नौकरी में प्लेसमेंट करना है, उसमें हमें यह आकलन मदद करता है। स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, फॉलोज फॉर्मल प्रोसीजर्स, स्पेसिफिक फॉर्मल प्रोसीजर इसके होते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, स्पष्ट बिल्कुल सूचनाएं दी जाती है। और स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग मेथड्स, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो परिणाम आते हैं उन परिणाम को कैसे अंकन करें, इसका मानकीकृत व्यवस्था रहती है। एक निश्चित अंक ही व्यक्ति को सही प्रश्न दिया जाता है, गलत प्रश्न पर भी कुछ निश्चित अंक काट लिए जाते हैं, उसके भी नियम बकायदे सूचनाएं इंस्ट्रक्शन पे दी जाती है। कहने का आशय है कि इस प्रकार के आकलन में स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज प्रोविजंस होते हैं। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव इन नेचर, स्वरूप में क्या होता है, मात्रात्मक स्वरूप होता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थी को कोई स्कोर मिल सकता है, उस स्कोर के आधार पर विद्यार्थी को उपलब्धियों को परसेंटेज में बांट सकते, दे सकते हैं, उनको कुछ ग्रेड दे सकते हैं। तो ये सारी ग्रेड, स्कोर, परसेंटेज जो है एक क्वांटिटेटिव नेचर को धारण किया रहता है, मात्रात्मक स्वरूप इसका रहता है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, यूजुअली कवर्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ कंटेंट इन स्किल्स टॉट ओवर द लर्निंग पीरियड। इसमें बाह्य मूल्यांकन या बाह्य आकलन के पहले जब परीक्षाएं कराई जाती है तो एक विद्यार्थी के सामने एक कंप्लीट सिलेबस रहता है, सारी बातें उसमें रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कि लर्निंग एस्पेक्ट के कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इसमें पाया जाता है। ये भी अपने आप में एक बाह्य आकलन की विशेषता है। जो नाउ बाह्य आकलन के उदाहरण जो है, ओके, सी फ्यू एग्जांपल्स ऑन स्क्रीन ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट। फर्स्ट वन इज द बोर्ड एग्जामिनेशन। जितने भी बोर्ड की परीक्षाएं होती, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, डिफरेंट स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एक्सेट्रा, ये जो है बाह्य आकलन के उदाहरण हैं। यूनिवर्सिटी सेमेस्टर आर एनुअल एग्जाम्स कंडक्टेड बाई एक्सटर्नल बॉडीज, विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं या एनुअल एग्जामिनेशन होती है, वो भी एक्सटर्नल असेसमेंट के उदाहरण होते हैं। नेशनल और स्टेट लेवल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, आप देखते होंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं कराई जाती हैं। जैसे मेडिकल के लिए बहुत ही चर्चित परीक्षा नीट परीक्षा, जिससे कि हम पूरे देश में मेडिकल के एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन बच्चों को देते। जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग जो परीक्षा होती है, जेई मेन, जेई एडवांस है, इससे पूरे देश में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन दिए थे। सीयूईटी विगत कुछ वर्षों से भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी और कुछ इंस्टीट्यूशन भी यूजीसी की जो बॉडी आपकी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो है कराए जाते हैं फॉर एडमिशन टू यूजी, फॉर एडमिशन टू पीजी। दीज एग्जामिनेशंस आर एक्सटर्नल असेसमेंट। और उसके अलावा ओलंपियाड्स अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग क्लास वाइज कराए जाते हैं। ये कुछ जो है एक्सटर्नल असेसमेंट के उदाहरण हैं।
एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस इवैल्यूएटेड बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, जो हमारी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होती है जिसमें एग्जामिनर जो है बाहर के आते हैं, बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स जो है, वो भी एक्सटर्नल असेसमेंट का ही उदाहरण है। पब्लिक सर्विस कमीशंस अपनी परीक्षाएं कराते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस जो है, यूपीएससी और एसएससी हैं, तमाम आर्मी के बोर्ड हैं, अलग अलग बैंकिंग बोर्ड हैं, ये सारे के सारे जो है एक्सटर्नल असेसमेंट है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे भारत सरकार की एनसीईआरटी के द्वारा या और संस्थाओं के द्वारा नास नेशनल असेसमेंट सर्वे कराए जाते हैं। दीज आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ external assessment. These are few examples. There are variety of examples of external assessment. Now educational use of external assessment. इनके शैक्षिक उपयोग क्या है? जो है पहला उपयोग है सर्टिफिकेशन एंड प्रमोशन। इन परीक्षाओं के माध्यम से हम प्रमाणन करते हैं और प्रमोट करते हैं। क्लास से दूसरी क्लास के लिए अकाउंटेबिलिटी जो है, इससे स्कूल की, टीचर की, विद्यार्थी की अकाउंटेबिलिटी जो है उनके अचीविंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान रखने के लिए बनती है। इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस, ये परीक्षाएं जो है ऑब्जेक्टिव और फेयरनेस को जो है सुनिश्चित करती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, पूरा सिस्टम जो है स्टैंडर्डाइज होता है। क्वेश्चन पेपर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, स्कोरिंग का, रिजल्ट डिक्लेरेशन का, सर्टिफिकेशन का, हर किसी में एक मानक व्यवस्था दी जाती है जिससे कोई गैप ना आने पाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो और हर किसी का अलग अलग स्कोर हो। स्कोर को एक दूसरे के हिसाब से कंपेयर किया जाए, स्कोर की रैंकिंग की जा सके, एक्सेट्रा। सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ये है, एक्सटर्नल असेसमेंट के माध्यम से तमाम जो है सिलेक्शन होते हैं और सिलेक्शन के आधार पर प्लेसमेंट दिए जाते हैं। जैसा कि बताया गया, अलग अलग रिक्रूटिंग बोर्ड्स जो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल असेसमेंट का प्रयोग करते रहते हैं। पॉलिसी मेकिंग, डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल असेसमेंट्स हेल्प गवर्नमेंट्स एंड बोर्ड्स इन करिकुलम प्लानिंग एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। जो है इन एक्सटर्नल असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए जो डेटा आता है, उस डेटा को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, आगे के करिकुलम को प्लान करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, नई पॉलिसी जब हमारी आती है उस समय भी इन चीज़ों को देखा जाता है और उनको फिर पॉलिसी में कंसीडर किया जाता है। कंसीडर करने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे CUET आपका आया है NTA के द्वारा, ये NEP 2020 के रिकमेंडेशन के आधार पर आया है कि नहीं जो है पूरे देश में सिंगल विंडो या सिंगल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है कि एक निश्चित कोर्स के लिए एक निश्चित प्रकार का एग्जाम हो, उससे सारे स्टेट, सारा देश कवर किया जाएगा। उसी प्रयास पे चल रहे हैं। यह नेक्स्ट ये है, अगला है तीसरा कर सकते हैं या C पार्ट कर सकते हैं, ऑथेंटिक असेसमेंट एक और प्रकार होता है। अभी तक हम लोगों ने बात किया इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट और तीसरा है ऑथेंटिक असेसमेंट। Authentic assessment refers to a type of assessment that focuses on real life tasks, applications and performances rather than traditional paper and pencil test। जो पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं उनसे हट करके जीवन में दिए गए कार्यों का जो आकलन हो सकता है या किसी चीज में क्या उपयोगिता है, कैसे आप उस चीज को इस्तेमाल कर पा रहे हैं या उसमें आप में परफॉर्म करने की कितनी क्षमता है, इनके लिए भी परीक्षाएं कराई जाती हैं, आकलन कराते हैं। इस बात को हम कहते हैं ऑथेंटिक असेसमेंट। इट इज ए फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। जो साइकोमोटर डोमेन है या अफेक्टिव मोटर डोमेन है, इन सबको हम परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट से या इनको ऑथेंटिक असेसमेंट कहते हैं, इससे ही करते हैं। जो है इन ऑथेंटिक असेसमेंट लर्नर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू एनालाइज, synthesize, create or perform demonstrating their understanding in meaningful ways। विद्यार्थियों को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है अपनी अंडरस्टैंडिंग को, वो भी मीनिंगफुल वे में, सार्थक तरीके से है, जिससे उनकी समझ, उनकी कार्यप्रणाली को आकलित किया जा सके। इसकी परिभाषा देखिए, जो है authentic assessment is a method of evaluating student learning that emphasizes real world application and practical skills. It goes beyond traditional tests and quizzes by focusing on the demonstration of knowledge and abilities in meaningful context. How learners are demonstrating their knowledge and abilities in a very
प्रॉपर वे इन ए मीनिंगफुल कंटेस्ट ये है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अनलाइक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट that measure memorization and omitting of information, authentic assessment assess a student's ability to apply what they have learned to real life situations। जो कहा गया ना कि अनलाइक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उसमें ज्ञान को विद्यार्थी रट लेता है, समझ लेता है और परीक्षाओं में उसको उत्तर किसी तरह से अपने मेमोरी के आधार पर रिकॉल करके सूचनाओं को दे देता है। उसके तुलना में ऑथेंटिक असेसमेंट में विद्यार्थी को उसकी योग्यता को, उस योग्यता का कैसे उपयोग कर रहा अपने जीवन में, किसी दिए गए कार्य में, किसी टास्क में, किसी प्रेजेंटेशन, इस बात का आकलन जो है ऑथेंटिक असेसमेंट में किया जाता है। इसके भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। टू असेस प्रायर नॉलेज, पहले की उसकी क्या समझ, इस बात को पता करते हैं। टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज एंड मिसकंसेप्शंस, उसको सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, क्या गैप है, इस बात का पता करते हैं। टू डिटरमिन लर्नर्स रेडीनेस, कितना विद्यार्थी अपने आप को किसी कार्य के लिए तैयार है, इस बात की भी जानकारी मिलती है। टू प्लान इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, जो है प्रभावित तरीके के इंस्ट्रक्शन को बनाने में, योजना बनाने में भी ये ही अपने आप में ऑथेंटिक असेसमेंट का एक उद्देश्य है। टू प्रोवाइड टारगेटेड रेमेडियल और इनरिच्ड सपोर्ट, ऑफर हेल्प टू स्ट्रगलिंग लर्नर्स एंड चैलेंज एडवांस्ड लर्निंग, आगे के एडवांस लर्निंग में भी जो है एक रेमेडी कर सकते मिलती है, उपचार मिलता है और उसको इनरिचमेंट सपोर्ट प्रदान किया जाता है। नाउ एग्जांपल्स एंड टूल्स ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट, बहुत सारे उदाहरण हैं और टूल भी कह सकते हैं। जो है क्या है, डिजाइनिंग ये साइंस प्रोजेक्ट, साइंस का जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो अपने आप में क्या है, जो भी विद्यार्थी विज्ञान में किसी निश्चित पक्ष पर सीख चुका, उन सीखी हुई बातों का प्रयोग करके एक प्रोजेक्ट का चयन करता है, बनाता है। अकेले भी कर सकता है, समूह भी कर सकता है, जिससे पता चलती है उसकी समझ कितना है, किस प्रकार से समूह में कार्य कर पा रहा है, कितनी सीखी हुई बातों का प्रयोग कर पा रहा है। ये डिजाइनिंग में जानकारी निकल के आती है। राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग ए न्यूज रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट को प्रेजेंट करना, लिखना, एडिटोरियल लिखना, स्पीच ऑन ए रियल इशू, कुछ छोटे छोटे स्पीच बनाना, लिखना, बोलना। रोल प्लेइंग हिस्टोरिकल इवेंट और कंडक्टिंग ए मॉक पार्लियामेंट डिबेट, मॉक डिबेट जो कराए जाते हैं इसमें भाग लेना, प्रतिभाग करना। क्रिएटिंग पोर्टफोलियो शो काजिंग लर्निंग ओवर टाइम, मैथमेटिकल मॉडलिंग टू सॉल्व कम्युनिटी प्रॉब्लम, जो समाज की समस्याएं हैं उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग के माध्यम से किस प्रकार से हम उसको समाधान देने का प्रयास कर पा रहे हैं। यह है बजटिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, एक्सेट्रा हो गया। आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ड्रामा, इनएक्टमेंट्स एक्सेट्रा। फील्ड वर्क रिपोर्ट्स एंड रियल लाइफ सर्वे, जो है जो फील्ड में जाते हैं बच्चे, एनएसएस के माध्यम से हायर एजुकेशन में बहुत सारी गतिविधियां कराई जाती हैं। जो है स्कूल लेवल पर स्काउट गाइड हो गया, एनसीसी हो गया, इनके माध्यम से हम जो है बच्चों में समझ विकसित करते हैं और ऑथेंटिक असेसमेंट के माध्यम से पता कर सकते हैं बच्चों में कितनी समझदारी विकसित हो पाई, कितना कुछ सीख पाए हैं, या अपने सीखे हुए ज्ञान का दिए गए परिस्थिति में किस प्रकार से इस्तेमाल करके अपने कौशल को विकसित कर पा रहे हैं। प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान, रिसर्च प्रपोजल, सोशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट, बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। रियल वर्ल्ड रिलेवेंस है, वास्तविक दुनिया से संबंधित है। इसमें उच्च स्तर का थिंकिंग स्किल का विकास होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ करना पड़ता है, एक्टिविटी करनी पड़ती है। क्लियर क्राइटेरिया एंड रूब्रिक्स, जो इसकी क्राइटेरिया है ना स्पष्ट होती है और रूब्रिक्स दिए रहते हैं। रिफ्लेक्टिव कंपोनेंट, जो कंपोनेंट होते हैं उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह का रिफ्लेक्शन रहते हैं। कंटिन्यूअस एंड एम्बेडेड सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन, व्यक्ति विद्यार्थी खुद का आकलन करके उसके आधार पर रिफ्लेक्शन देता है। स्टूडेंट सेंटर्ड, यह है विद्यार्थी केंद्रित होते हैं। यह है इंटीग्रेटिव, कई चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट बोथ इवैल्यूएटेड, यह है ओपन एंडेड एंड फ्लेक्सिबल। यह नाउ एजुकेशनल यूजेज ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट, इस प्रकार के आकलन का शैक्षिक प्रयोग क्या है। कई प्रयोग हैं, कुछ प्रयोग आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। ब्रिज स्कूल लर्निंग विद रियल लाइफ, विद्यालय में जो सीखा गया ज्ञान है और घर में सीखा गया ज्ञान है, दोनों में क्या करता है, एक ब्रिज, एक लगाव पैदा करता है। यह है प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी,
develops transferable skills, provides a more comprehensive picture of learning, motivates learner। इस प्रकार के आकलन बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, कुछ और नया काम करें, कुछ और नया सीखें। जो है सपोर्ट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा उसको भी क्या करता है, बल प्रदान करता है, मदद करता है। इंकरेजेज सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, स्वयं के द्वारा आकलन और सहयोगियों के द्वारा या मित्रों के द्वारा जो आकलन किया था उस बात को भी ये इंकरेज करता है। अलाइंस विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, यूजफुल फॉर डाइवर्स लर्नर, तरह तरह के जो लर्नर हैं, लर्निंग है, उनको में भी फायदेमंद है। इम्प्रूव्स लॉन्ग टर्म रिटेंशन, जो सीखा हुआ ज्ञान है, सीखी हुई बातें, उसको अधिक समय तक उसको रोका जा सके, समझा जा सके, इसमें भी जो है ऑथेंटिक असेसमेंट मददगार होता है। अभी तक आप लोगों ने 3 प्रकार के असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट और एक और असेसमेंट था ऑथेंटिक असेसमेंट को देखा। अब एक चौथा प्रकार का असेसमेंट होता है जिसको कहते हैं ऑनलाइन असेसमेंट। जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है कि असेसमेंट डन थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन मीन्स एन असेसमेंट डन बाय some gadgets, that is the computer, tablet, mobile devices, etc. In this type of assessment, learner is assessed through digital tools and online platforms. Now see the definition of online assessment. Online assessment is a technology enabled process of measuring learners' knowledge, skills, attitudes or competencies through digital platforms, often providing automated administration, scoring and feedback. Given by UNESCO. Online assessment is the use of digital technologies to plan, implement and evaluate student learning activities and outcomes. This is a different type of assessment in comparison to other discussed assessment, that is the internal assessment, external assessment and authentic assessment. Now see the examples and tools of online assessment. Online quizzes and tests through platforms like Google Forms, Kahoot, Quizzes, Moodle, Edmodo, etc. These are some platforms where online tests can be organized. E-portfolios, where students upload their work, reflections or projects digitally that can be checked by the teacher. Online assignments and submission portals, Turnitin है, Canvas है, Microsoft Teams, गूगल क्लासरूम। यहाँ पर विद्यार्थी अपने ऑनलाइन असाइनमेंट को क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। टीचर वहाँ असाइनमेंट देखते हैं, कमेंट देखते हैं और टीचर को भी सारे डेटा को कंपाइल करके रखने में, देखने में बहुत ही आसानी होती है। इंटरेक्टिव असेसमेंट सच एज ड्रैग एंड ड्रॉप लेबलिंग, केस एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, ये जो है इंटरेक्टिव होते हैं। सीधे ऑनलाइन जो है दोनों लर्नर और टीचर जुड़ करके देख सकते हैं। ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स यूजिंग प्लेटफॉर्म्स, जो है इसमें परीक्षाएं हो रही जो ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड, कैमरे के सामने जो है आप निगरानी में परीक्षाएं दे सकते हैं। इनके कुछ प्लेटफॉर्म हैं, exam.net है, प्रॉक्टर यू है और स्कूल LMS सिस्टम्स है। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। डिस्कशन फोरम्स एंड ऑनलाइन डिबेट्स, जो है ऑनलाइन लर्निंग के लिए बहुत सारे फोरम्स बनाए जाते हैं कोर्स वाइज। जैसे आप स्वयं कोर्स के ही विद्यार्थी हैं, स्वयं कोर्स में हम लोग इस कंटेंट को एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ भी आपके लिए डिस्कशन फोरम है जिस पर आप इस कंटेंट से संबंधित अपने टीचर के द्वारा डिस्कस कर सकते हैं और अपने सजेशन ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। वीडियो प्रेजेंटेशंस आर रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस सबमिटेड ऑनलाइन फॉर असेसमेंट, जो है इनको भी हम ऑनलाइन वीडियो को और रिकॉर्डेड जो परफॉर्मेंस दैट कैन आल्सो बी सबमिटेड फॉर असेसमेंट। कोडिंग टेस्ट्स, सिमुलेशंस और वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट्स are also used for online assessment. Now, characteristics of online assessment. Following are some important characteristics of online assessment. Technology based, पूरा आकलन किस पर निर्भर करता है, तकनीकी पर निर्भर करता है। रिमोट और इन क्लास, जो है कोई जरूरी नहीं है कि आप इन क्लास में रहें, आप दूर रहते हुए भी ऑनलाइन असेसमेंट में अपीयर
हो सकते हैं, क्लास में भी रह के अपीयर हो सकते हैं या रिमोट में भी दूरी पर भी रहते हुए ऑनलाइन असेसमेंट में अपने आप को अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, समय में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। असेसर और एसएससी को ध्यान में रखते हुए दोनों डिसाइड करते हैं कि किस टाइम पर कहाँ बैठें, कैसे करेंगे। कभी फिक्स टाइम रहता है, इतने टाइम पर असेसमेंट होना, कभी होता है कि आप इस टाइम के दौरान किसी भी टाइम अपने आप को अपीयर हो जाइए। ऑटोमेटेड स्कोरिंग एंड फीडबैक, स्कोर जो है जैसे ही सारे क्वेश्चन को हम अटेंड करते हैं, ऑटोमेटिक कमांड देने पर जो है कंप्यूटर जो है स्कोर करके निकाल देगा और फीडबैक भी प्रदान कर देगा। रिजल्ट को बिल्कुल कंपाइल कर देता है। वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, बहुत तरह तरह के फॉर्मेट विकसित हो चुके हैं ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। एक्सेसिबल है, आसानी से एक्सेसिबल हो सकता है। इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया बेस्ड, मल्टीमीडिया का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इंटरैक्टिव होता है, लर्नर अपने आप को उससे जोड़ पाता है। सिक्योर्ड विद ऑथेंटिकेशन टूल्स जो है, बहुत सारे ऑथेंटिकेटेड टूल विकसित किए गए जिसके माध्यम से इन परीक्षाओं को हम सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। डेटा रिकॉर्डिंग एनालिटिक्स, सारे डेटा को रिकॉर्ड कर दिया जाए, रिकॉर्ड करने के बाद उसको एनालाइज करके उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी जो है एडमिनिस्ट्रेटर निकाल सकता है, बता सकता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल, टाइमिंग भी, टाइम कंट्रोल करना बहुत आसान है। एक सिंगल विंडो से, सिंगल पॉइंट से सारे लोगों के लिए एक फिक्स टाइम पर परीक्षाएं शुरू कराई जाती हैं, फिक्स टाइम पर परीक्षाएं रोक दी जाती हैं। तो टाइम का कंट्रोल जो है ऑनलाइन असेसमेंट में बहुत आसानी से और बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जा सकता है। ये कुछ कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अब हम लोग ऑनलाइन असेसमेंट के शैक्षिक प्रयोग पर बातचीत करेंगे कि एजुकेशन में इसका कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है। एक्सपेंड्स एक्सेस टू असेसमेंट, असेसमेंट का जो एक्सेस है इसकी बढ़ोतरी हुई है काफ़ी विगत सालों में जो है। सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेज, समय की बहुत बचत होती है, बहुत सारे संसाधनों की बचत होती है। सपोर्ट्स कंटिन्यूअस असेसमेंट, और इसके माध्यम से हम कंटिन्यूअस असेसमेंट बार बार करना एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आसान होता है, जिसको वो लागू कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इंडिविजुअल लर्नर के लर्निंग का असेसमेंट भी हम ऑनलाइन असेसमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। प्रोवाइड्स डिटेल्ड एनालिटिक्स, और बहुत सारी जानकारी जो है इसकी जो एनालिटिक्स बनती है, एनालिसिस बनती है, सारा डेटा को वो निकाल सकते हैं कि पूरे ग्रुप का क्या ट्रेंड है, किसी लर्नर की क्या प्रगति, कितने टेस्ट दिया, कितने नहीं बैठा जाए। तमाम एजेंसियां इनका इस्तेमाल कर रही हैं इस समय और एनालिटिक्स को पब्लिश कर रही हैं जो है, विद्यार्थी के लिए, सोसाइटी के लिए, गार्जियन के लिए, टीचर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। प्रमोट्स डिजिटल लिटरेसी जो है, और ये ऑनलाइन असेसमेंट जो है डिजिटल लिटरेसी को भी प्रमोट कर रहा है। इनहेंसेज इंगेजमेंट, सपोर्ट्स डिस्टेंस एंड ब्लेंडेड लर्निंग, इससे डिस्टेंस लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग को सुविधा मिल रही है। इंश्योर्स एकेडमिक इंटीग्रिटी विद टूल्स, फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग एंड इंस्टेंट फीडबैक जो है, इसकी शेड्यूलिंग जो है फिक्स करना, बदलना आसान होता है और फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। कंक्लूजन, अभी तक हम लोगों ने 4 असेसमेंट पढ़ा, इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट, ऑथेंटिक असेसमेंट और ऑनलाइन असेसमेंट। चारों को मिला के ऑन एंड होल वी कैन से दैट असेसमेंट इन एजुकेशन encompasses various types such as internal, external, online and authentic assessments, each serving unique purposes. Internal assessment continuously monitors learners' progress within the institution, while external assessment ensures standardization and comparability through external agencies, whereas online assessment enables flexible and technology-driven or oriented evaluation, whereas authentic assessment focuses on the real-life application of knowledge. Together, these assessments play a vital role in enhancing teaching learning process, ensuring accountability, promoting student engagement, and guiding educational planning and decision making. आपने भी देखा कि आकलन के प्रकार जो है अलग अलग आधार पर, एक प्रकार पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा, आज के व्याख्यान में हमने देखा कुल 4 प्रकार के आकलन के विधियां हैं। इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट, ऑथेंटिक असेसमेंट
और ऑनलाइन असेसमेंट, चारों की अलग-अलग स्वभाव है, चारों की अलग-अलग ज़रूरतें हैं और एक शिक्षक को इन चारों आकलन के प्रकारों की जानकारी हो जाने के बाद वह अपने परिस्थिति के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से समय-समय से इन आकलन का प्रयोग करता रहता है, जिससे बच्चों की अधिगम में वृद्धि होती है। इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस व्याख्यान को समझा, सुना और आशा है कि आप इसका भविष्य में प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों की अधिगम में वृद्धि करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।